Queen of Hills. It used to be the summer capital of British India. Then it became the capital of Punjab for a brief time before settling to be the capital of Himachal Pradesh. Shimla city, with a population of approximately 1,70,000, is the capital city of not only the state but also the headquarters of Shimla district. Shops in the famous Shimla Ridge Road Mall are closed. Traders and locals are out on the road protesting. Today, the situation is peaceful. The Sanjoli is normal. The normalcy has prevailed over there. But you can see behind me, the shops are closed. Basically, the Vyapar Mandal in Shimla had given a call to close the shops in Shimla at the Mall Road and other places from 10 a.m. to 1 p.m. And now it's the clock has crossed 10 a.m. and the shops here are closed. And the shopkeepers have closed because they are unhappy with the police using force on the localites. They feel that the Hindu organization protesting peacefully and the police should not have lathi charged them. The police should not have used water cannon against them. And this is the reason that Vyapar Mandal has given a call for the closure of the shops. For 3 hours between 10 a.m. and 1 p.m., there was a complete trade strike in the heart of Shimla at the peak tourist season. Because the day before, locals and police collided during a protest march. They were marching towards a mosque, nearly 40 kilometers from Ridge Road. Chanting Hanuman Chalisa and Bharat Mata Ki Jai slogans. They questioned the construction of the mosque. They claim the structure has been built illegally. Police resorted to lathi charge and water cannons to disperse the crowd. इसको गिराया जाना चाहिए नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। The picturesque city and the state simmers with communal tension. All apparently because of a mosque in Shimla. Monsoon in the hills is green. Clouds float around like fluffy cotton balls in the blue sky. Shimla becomes a rain-drenched beauty. But 2024 has been a struggle. With excessive rainfall, the state and the city have been constantly fighting against threats of natural calamities. The state coffers were running dry. The Chief Minister announced that he, along with all the ministers and cabinet-ranking officials, will forego 2 months of salaries. सभी मंत्रिमंडल वर्ग के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे।
महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। जब तक जयराम ठाकुर था, हमने समय पर सैलरी दी है, समय पर पेंशन दी है, और हमने समय पर जो मेडिकल रिम्बर्समेंट कर्मचारियों की दी है, एरियर्स दिए हैं, डीए की किस्तें दी हैं। लेकिन आज जब जिम्मेवारी सुक्खू जी की है तो उनको अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। कब तक आप इस तरह से इस जिम्मेवारी से भागते हुए अपने आप को वो दिखाते रहेंगे? ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। A day later, half a dozen people belonging to the minority community allegedly attacked a businessman and some other traders in the Malyana area with rods and sticks, injuring 4 of them. One trader was injured severely. करियाने की दुकान है, वहाँ पे वो मोहम्मदन भी सामान ले रहे थे और वो जो हिंदू लड़का वो भी सामान ले रहा था। जो वो सामान ले रहे थे तो वही मोहम्मदन लड़के कुछ गाली गलौज कर रहे थे। उसने कहा कि आप इस तरह की बातें यहाँ मत करिए, पब्लिक प्लेस है। तो हम उसको मतलब फर्स्ट एड देने के लिए आए थे यहाँ पे, और उसको समझा भी रहे थे कि आप यहाँ से घर चल जाओ, और ये रात का वक्त है, इस टाइम किसी से कोई बात नहीं की जा सकती। जब हमने समझा ही रहे थे, बातचीत आ रहे थे, उसके घर से भी आगे थे लोग, उसको ले जा रहे थे। उतने में मतलब कोई 15-20 मिनट का गैप हो गया होना, पहली लड़ाई और जब वो दूसरी बार आए तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो 4 एक तरफ से आगे, 2-3 एक तरफ से आगे, और डंडे डुंडे या रॉड लेके वो उन्होंने सीधा कोई बातचीत नहीं की हमारे से, ना कुछ बोला, और सीधा हमारे ऊपर अटैक कर दिया। Locals allege the brawl happened between 2 individuals from 2 different communities in a shop. They also allege that one of the individuals belonging to the minority community came back with friends and attacked them. नहीं, इतने तो मौका ही नहीं मिला ना बात करने का जी, कि उनसे पूछा जा सके, तब तो हम उनको समझा लेते। वो वैसे वो आए और उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। मेरे ख्याल से सहारनपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे शॉप करते हैं। हाँ, जो उनका वो है, जो मतलब मेन है उनका, वो 8-10 सालों से मतलब सराउंडिंग एरिया में दुकानें चला रहा है। 6 दुकानें हैं उसकी। उनका नाम क्या था जिसने मेजर अटैक किया, या जो लीड था उनका? वो अपना निक नेम तो हिंदू नेम से लिखता है, कुणाल, और वैसे उसका नाम मोहम्मद गुलनवाम। He has been apprehended by the police. Locals started looking for the miscreants. तो वो लोग कह रहे थे कि वो लोग मस्जिद में, संजौली वाली मस्जिद में छिपे हुए हैं। तो इसलिए के लोगों ने मतलब वो किया कि ये मस्जिद का तो कुछ और भी मैटर चला हुआ था लोकल लोगों के साथ, कि वो लोग रेडी फड़ी वाले लोग आते हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, वो बदतमीजी करते हैं यहाँ के लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। तो इस तरह से ये एक वो मूव बन गया कि उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए। In the next couple of days, the very local brawl became the talking point in the city and soon reached the state assembly. 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। Now it was no more a hyper-local neighborhood brawl, but it was a complex issue of outsiders doing business without permission in the state and illegal construction in the mosque. People surrounded the mosque in Sanjauli. Police tried to control the overflowing local anger. State government set up an inquiry committee. इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद सामने बात आएगी, पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। उनको भी कानूनन जाना चाहिए। कोई इलीगलिटी है तो कंसर्न जो भी, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे यूडी है, चाहे कॉर्पोरेशन है, उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। The opposition smelled blood and they kept pounding for flesh.
देखिए, एक तो अवैध निर्माण और मस्जिद का निर्माण करना, ये समझता हूं मैं कि भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसका संज्ञान पहले लेना चाहिए था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, शुरू में ही होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हो जाएगी। And the mosque became the bone of contention. The locals strongly believe that the miscreants at Malyana come from the neighboring state of Uttar Pradesh and have been staying in the mosque in the adjacent village of Sanjauli. Records show that the mosque was built in 1947. Politicians of Himachal Pradesh claim it was built on government land. Alternatively, some claim it's built on Waqf property. Till the last millennium, it was a single-story structure. At the turn of the century, floors were added to it and the matter reached court. Locals claim it to be an illegal construction. Cornered with the financial crisis, the state government waded in the troubled water of the mosque, and the controversy started to grow ominously. मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सर, जमीन, सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा। सर, जब कानून है दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक। ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूं आपको। इसको जो है इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, जैसे क्योंकि ये इलीगल है, ये पेपर्स में भी रिपोर्ट में है। देखिए, एक तो अवैध निर्माण और मस्जिद का निर्माण करना, ये समझता हूं मैं कि भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसका संज्ञान पहले लेना चाहिए था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, शुरू में ही होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हो जाएगी। Shimla is witnessing a protest over a mosque construction that claimed to be illegal, and right behind me is the same mosque that's been constructed in Sanjoli area of Shimla. You can see through the visuals that from the ground floor how the construction has taken place. In 1960, when it was initially constructed, the only ground floor was present. That's what the local residents claim here, and when Minister Anirudh Singh has claimed this construction illegal and stated that the land is of Himachal government, but the construction or the whole acquisition is taken by the Waqf board, so it should be demolished. And MC Shimla, especially the mayor, has to take the initiative after the 44 hearings that has taken place in MC. Now the MC should act and demolish this whole mosque, the illegal construction that's been constructed in recent years. And you can see through the visuals as well that how the ground floor is seems to be old, like it's painted in light green color, and first, second and third floors. The fourth floor above the ground floor is recent one and newly constructed. Not only the mosque, locals were angry about the influx of outsiders, and specifically people of minority community. कुछ जो है उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और फेक आइडेंटिटी के अंतर्गत यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों में है, चाहे वो रेडी फड़ी के है, चाहे वो और चीजें हैं। तो इसको हमें लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट के से देखने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बाहर के राज्य से हिमाचल में आकर फेक आइडेंटिटी के अंदर काम करे, ये हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी साफ करी है और उस दृष्टि से हमको इसको देखने की आवश्यकता है। Protests at the mosque became a daily affair. People living in the area were not happy with the mosque and its construction. यहाँ पे जो वैसे भाईचारे का माहौल है, लेकिन जो बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति है उसके
उनकी वजह से डर का माहौल पैदा हो जाता है। इतनी संख्या में लोग आते हैं, शुक्रवार हो या इनके रोजे टाइम का हो, तो इतनी संख्या में लोग आते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब आस पड़ोस में डर का माहौल पैदा हो जाता है। एक्चुअली 2010 में यहाँ पे केस चल रहा था, जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था, सामान लाकर रखा था, तो उस समय जेई साहब ने दे दी थी वहां पे रिपोर्ट की ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इन्होंने उसके बाद भी 2019 में इनको ऐसा क्या शेल्टर मिला कि इन्होंने एक फ्लोर ही बनाया इन्होंने 2019 में, या चारों फ्लोर का बना? चारों फ्लोर 2019 में बने, ये 2015 में नहीं बने हैं, 7 में भी नहीं बने हैं, 10 में स्टार्ट हो गया था, बट कुछ टाइम के लिए काम रुक गया था। काम 2015 में भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, 2015 में नहीं हुई है, 2019 में हुई है। हाँ जी, 19 में हुई है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि अभी तो कोर्ट में आपका मैटर है, आप लोग काम कर रहे हो, फिर इन्होंने कहा कि हमने परमिशन ले ली है। The Sanjauli Mosque and its construction of 4 additional floors will next be heard in the first week of October. A local brawl turned into a communal row. Hindu groups called for stronger agitation and people came thronging on 11th September. Protesters demanding the demolition of an illegal structure in the mosque in Shimla's Sanjauli area broke barricades. Security forces lathi charged. प्रदर्शनकारियों की ओर से जो सबसे राइट हैंड साइड की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे कि कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पिछले 10 मिनट में बैरिकेडिंग पर हाथ मारकर, कभी बोतल फेंककर, कभी नारेबाजी कर बैरिकेडिंग को जोर जोर से हिलाया जा रहा था और बैरिकेड को, जो 4 बैरिकेड बड़े लगाए गए हैं, उनको तोड़ दिया गया है। The Chief Minister of Himachal Pradesh said no decision can be taken till the court gives a verdict. उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी और इस प्रकार की किसी भी वारदात को कानून हाथ में लेने का किसी भी संगठन को अधिकार नहीं। Opposition slammed the ruling party for playing with the sentiments of people. जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। और मैं इस बात को मैं देख रहा हूं कि जो हिंदू संगठन है और यहां के स्थानीय लोग हैं, उनकी जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। The mosque authority announced that they would respect the municipal court's verdict. राजनीति तूल न दिया जाए। ये जो है धार्मिक मस्जिद हो या मंदिर हुआ, जो भी ये चीजें हैं, ये सब जो है प्यार मोहब्बत जो है बनाती है, ना कि ये प्यार मोहब्बत को ठेस पहुंचाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। The next day, the traders observed 3 hours of shutdown. Shimla and Himachal Pradesh's economy depends heavily on tourism. Locals, though, are agitating for the mosque to be raised, are protective about the tourism industry. Shimla has seen a lot of protests in the past few days due to the alleged illegal construction of a mosque. Even lathi charge was done by the police, cane charge, water cannon was done, everything was used. But still, the things are falling back to normalcy in Shimla, and we are on the historic ridge. And you can see that the tourists are all over this place. Let's talk to some tourists. कोई दहशत नहीं है, एकदम फ्री माइंड है, फ्री माइंड पब्लिक है, खुला आ रही है, खुला जा रही है, आराम से खा रही है। किसी तरह का कोई डर या क्योंकि ये आपने देखा किस तरह के शिमला में कोई डर नहीं है जी, कोई डर नहीं है।
Shimla is shrouded by rain clouds. It's misty and the wind is heavy. The mosque and its future is shrouded in this fog of hatred and insecurity of locals losing their earning to outsiders. The politicians have mismanaged the state's economy, and instead of owning up to their mistakes, they have found a new scapegoat, an emotive issue, a mosque.